All right. So, hello everyone. This is Siddharth, and I am the critical reasoning faculty at Flamesflat. Brief introduction about me. You must have seen me in one or the other sessions on this channel. Brief introduction about me. Well, I am a fourth year BLLB student at National Law School of India, University, Bangalore. I cracked CLAT in 2021. My All India rank was 38. Had also cracked CLAT in 2020. My All India rank then was 519. And since then, I've been associated with Flames since 2021, and I take critical reasoning here. Um, Today's session, this was something that has been in pipeline for a while, and we thought let's put it on YouTube so that not just our students but people who know about Flames and want to know about GLAD can also benefit from it. So, what is today's session about? Today's session is about the strategy to clear 2026 GLAD examination. Today's session is going to be very particularly directed towards people who are done with their board examinations, both class 12 examinations. Not very much beneficial for people who are still in their class 11th or have are done with their class 11th are in class 12. Because whatever I'm going to say today, I'll be assuming that you have full day um, at your disposal and you're preparing for CLAT and you have nothing else to do. You have devoted your entire year for this examination. Why a special session for people who are preparing? One more important pointer: if you are in class 12, you may watch this session. Can be very much beneficial too. But let's come back. Why special session for people who have taken a drop or are done with their class 12 board examinations? The reason is the people who are preparing right now. I hope you all realize that you have taken a year gap. है ना? You all have taken a year gap. I had myself taken a year gap in 2021. I hope you all realize this, the importance of taking a year gap. बल्कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब तुम एक ईयर गैप लेते हो, है ना? जब तुम एक ईयर गैप लेते हो, बहुत सारी चीजें तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है. ठीक है? You will have your peers who might have taken CUET, will be joining Delhi University, will be joining XYZ University, NID, IIDs, or whatever it is, and you will be taking a drop for a worthy cause. I'm not saying it's a waste. I had also myself taken a drop, and it went really well for me. So it does not mean that you have taken a drop, it will go well, है ना? बहुत लोगों का नहीं जाता है. So which is why you people, out of everyone, need to be very serious about this exam. एक बार जब commit कर लिया है कि अब I am going to appear in 2026 CLAT, which will be happening, I think, 7th December, 7th or 8th, the first Sunday of December 2025. If you have committed yourself to this idea, committed yourself to this goal, it means that you are going to give everything that you can, everything, all the energy, all your mental space, all your efforts to this examination. ठीक है? नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, है ना? फिर कोई मतलब नहीं बनता अगर अपन लोग सिर्फ और सिर्फ कहने को बोल रहे हैं कि ये एग्जाम में अपीयर होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उतनी मेहनत नहीं करी तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है? विच इज वाई वी आर गोइंग टू टॉक एट लेंथ अबाउट दिस एग्जामिनेशन. पेन पेपर लेके बैठना, थोड़ा लेंदी होगा आज का सेशन. So even before I move to the next slide, one very important thing that I want to talk about is this exam. Everybody says this exam is very unpredictable. You must have often heard people saying ki, the only certain thing about this exam is uncertainty. It's true. Okay? It is very true. There is only thing certain about this exam, and that's uncertainty. इस पेपर में कुछ ना कुछ हर साल सरप्राइज एलिमेंट आता है, हमेशा आता रहा है. 2020 के बाद तो it has become more standardized compared to what it used to be before 2020. But since 2020, every year we have seen some or the other thing happening in the paper that have thrown students off guard in the examination.
What does it mean? It means we cannot leave any stone unturned. अपन लोग कुछ भी नहीं छोड़ सकते. अगर अपने को श्योर शॉट चाहिए कि मेरे को एग्जाम क्लियर होना है. This year they had asked seating arrangement in class in exam. We had in our classes mentioned repeatedly that seating arrangement can be asked in the exam. Now the reason why CLAT does this is they want to filter students, right? The purpose of any competitive examination is to filter students. Now, what is the best way to filter students? Ask something that they might not be prepared about, or best, not everyone is prepared about. Which means कि कोई भी चीज जो छोटी छोटी चीज जो आ सकती है एग्जामिनेशन में, anything that can fit in this syllabus criteria which is given on the CLAT Consortium website, we have to make sure that we will prepare and have strong command over each and every bits of each and every section that this exam tests us on. That also means that also means this is going to require efforts. Why do I talk about efforts? Dekho, this is, I'm assuming, perhaps the first competitive exam that you are going to appear in your life. Competitive exams are very different from any exam that you have ever taken so far. Be it your boards, be it could be your XYZ Olympiads, anything. Why? First, your career is dependent on it. Second, you would have put a lot of effort compared to any other competitive any other exam you have ever taken so far. Third, and most importantly, your performance does not just your result does not just depends on how you perform, but also is very much dependent on how your peers perform. ठीक है, कंपेरेटिवली हमें बेटर करना है. ऐसे में ये छोटी छोटी चीजें, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग की, डेटा मैनेजमेंट इन जनरल, ठीक है, पैराडॉक्स, फ्लॉ, बोल्ड फेस, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये चीजें जो है वो वी कांट अफोर्ड टू लीव. ठीक है, वी कांट अफोर्ड टू लीव ऑल ऑफ दोस थिंग्स. क्यों? क्योंकि now this is just about CR. There are multiple things like this for each and every section in CR. You can't afford to leave all of these things, and this will require humongous effort. Now let's move to the next slide. The next slide says the illusion of time. देखो बेटा, है क्या कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम compete इनके against. The first pointer says who are we competing against? Let me rephrase it. What are we competing against? You're competing against two things. First, exam, जो कि uncertain है. दूसरा, your peers, people who will be writing the exam on that day. It could be the number could range from 60,000 to 1 lakh. I'm pretty sure तुमने उतने सारे लोगों को एक जगह भी जीवन में देखा भी नहीं होगा. And all of them will be appearing for those colleges that you dream to get into on 7th of December 2025. I'm assuming it's 7th. I might be wrong, 6th, 7th, whatever it is. They have not announced the date yet, but going by the trend. So all of them will be appearing. तो आप जो घर में जो लोग ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या खुद से, आप जब घर में बैठे हुए हो आपको आइडिया नहीं है कि किनके अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहा हो. एंड माइंड यू, मार्केट में कोई ऐसी टेस्ट सीरीज भी एग्जिस्ट नहीं करती जो आपको रियल कॉम्पिटिशन का फ्लेवर दे सके. कोई नहीं एग्जिस्ट करता, हम भी नहीं है. क्यों? क्योंकि उतने लोग कोई मौका नहीं देते. ठीक है, all the people who are appearing this for this examination or who are going to appear for this examination are not going to write one single mock. This is impossible. Only a small chunk of them will be writing. So let's say you took XYZ coaching a mock and you got a rank of 50 in it, all India rank, let's say it was an all India mock, and 5,000 people appeared. Imagine on that day, 5,000 people won't be appearing. Much more than that. More than 10 times of that crowd will be appearing. So the competition that you are facing is immense. No coaching institute का mock का score, no coaching institute का mock का rank can ever give you a real flavor of the competition that you will be facing on that day.
एंड सैडली दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दैट एवर एग्जिस्ट और हैज एग्जिस्टेड। ठीक है, तो वो है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या? करना ये है कि अपने को देखो, ज्यादा कुछ अपन लोग कर नहीं सकते। अपन लोग बस एक चीज कर सकते हैं कि अपन एफर्ट पूरी डालें, है ना। अपन एफर्ट इतनी डालें कि अपन ये इंश्योर कर लें कि अपने साइड से हमने सब कुछ कर लिया, कि अपने साइड से हमने सब कुछ कर लिया। अगर ये चीज तुम इंश्योर कर पाते हो, देन ट्रस्ट मी, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। आई एम somebody who was taking this exam twice. I have been mentoring kids since past what 3 4 years, and I've seen a lot of people getting single digit, double digit ranks, even 3 digit ranks, 4 digit ranks. And I know what they have done. I know what they have been doing. And from all of those experience, I'm telling you this. बट यही एक जो सिंपल छोटी सी चीज है ना, जो मैंने बोला कि एफर्ट डालनी है, बहुत एफर्ट डालनी है, यही चीज पे अपन लोग मिस आउट हो जाते हैं। यही चीज अपन लोग अच्छे से नहीं कर पाते। तो वो हो क्यों नहीं पाता है? विल सी। विल सी कि वो हो क्यों नहीं पाता है। ओके। तो द नेक्स्ट पॉइंटर ऑन द स्लाइड सेज व्हाट मेक्स समवन अ टॉपर। देखो, पहली बात तो अपन ये अज्यूम करके चलेंगे, मैं अपने साइड से ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ क्लैट निकालना नहीं, तुम्हें रैंक चाहिए। ठीक है, तुम्हें सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक चाहिए, तुम उसको एम करते हो। अपन लोग जो पढ़ाते हैं मेंस में तो वो ही अज्यूम करके चलते हैं, और उस पे ही वी मेक श्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट आउट। सो इमेजिन जस्ट, लेट्स टेक अ मोमेंट, है ना, लेट्स टेक अ मोमेंट, लेट्स स्टेप बैक। एक बार सोचो, एनीबडी हु विल बी, हु, अब एग्जाम तो हो रहा है, देयर विल बी समवन हु इज गोइंग टू गेट AIR 1, है ना। देयर इज डेफिनेटली समवन हु विल बी गेटिंग AIR 1 2 3 likewise. Now let's take a step back and think, anyone who is aiming to be AIR 1 or who gets to become AIR 1, वो इंसान करता क्या हो? ठीक है, वो टॉपर, what would that topper person who is going to top the exam or the person who tops the exam does? What do you think they do? How do they utilize their days? How do they prepare? Do they uh, pick different materials? No. Very famous saying goes, toppers don't do different things, they do the same things differently. What is it that makes someone a topper? Same thing that you have been hearing everywhere: consistency, determination, concentration, all of those good qualities that we ever heard about. ये मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूँ? मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आई एम प्रेटी श्योर तुम में से कुछ लोगों ने तो एक वो रख रखा होगा कितने दिन बचे हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तुम्हें लग रहा होगा अभी 8 महीने बचे हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा 246 डेज बचे हैं, लेकिन लेट मी पुट थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। 35 वीक्स बचे हैं। अभी लाइक 35 वीक्स से क्या करें हम लोग? तुम्हें रियलाइजेशन है कितनी जल्दी जल्दी संडे पार हो रहा है ना, कितनी जल्दी जल्दी संडे निकल रहा है अपने हाथ से। ऐसे बस 35 संडेज आएंगे अपने पास। ऐसे बस 35 संडेज आएंगे, उनमें से कुछ टाइम होगा जब तुम बर्न आउट फील करोगे, कुछ टाइम होगा जब तुम रिविजन को दोगे, कुछ टाइम होगा जब तुम सही में बीमार रहोगे। ठीक है। और अब तो एग्जामिनेशन में CR AR लिख रखा है। अब तो एग्जामिनेशन ऐसा हो गया है कि क्रिटिकल रीजनिंग में उन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट डाल रखा है, तो डेटा अरेंजमेंट भी अपने को पहले तो ध्यान नहीं दे रहे थे लोग, पर अब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस इज नॉट एज स्मॉल एज यू थिंक इट इज। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, नॉट एनीथिंग बट द सिलेबस इज वेरी बिग। ठीक है। एंड let me break that bubble for you. Classes does not depend on which coaching institute you are from. Classes only supplement your prep. They just supplement your prep. प्रिपरेशन सप्लीमेंट करती है। ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं करती है। प्रिपरेशन तुम्हारी हमेशा खुद की होती है। क्लासेस तुम्हें हेल्प करती है, मेंटोर्स तुम्हें हेल्प करते हैं, पढ़ना तुम्हें ही होता है। ठीक है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें ये आके नहीं बोल रहा होगा कि चलो हम तुम्हारे लिए एग्जाम निकलवा देंगे, ऐसा नहीं होता कभी। हम एग्जाम निकालने में हेल्प करते हैं, पर पढ़ना तुम्हें ही है। एफर्ट तुम्हें ही डालना है, सेल्फ स्टडी तुम्हें ही करनी है। ठीक है।
Just think about somebody who is going to be a topper. ठीक है, let's take a step back. What do you think they would be doing right now? क्या वो इंसान पार्टी कर रहा होगा? ना. क्या वो इंसान बैठ करके दूसरों के बर्थडे जा रहा होगा या खुद के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा? ना. क्या वो इंसान भाई भतीजे चाचा मौसे जो भी हैं, जिनकी भी मौसी जो भी है, उनकी शादी अटेंड कर रहा होगा? नहीं. क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि उसे पता होगा कि मैंने एक प्रायोरिटी डिसाइड करी है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, एंड आई एम गोइंग टू बी ट्रू टू माई वर्ड्स. Is preparing for the exam for this examination, what is it that you will be doing next? Is this the first thought that comes to your head when you wake up in the morning? Is this the last thought that enters your head when you go back to sleep? If not, you're doing something wrong. For clearing any examination, you need to be very, right? एक हिंदी में शब्द है जुनून, ठीक है? You need to be very mad about it. हाँ नहीं, मेरे को निकालना है. आई डोंट नो एनीथिंग, अब मुझे बस निकालना है एग्जाम. ठीक है, अपने को एग्जाम निकालना है. और अगर ये चीज है, इफ दिस इज समथिंग दैट इज विद इन यू, हाँ, डजेंट मैटर, अर्थ माइट स्टॉल रिवॉल्विंग, सूरज ईस्ट से नहीं वेस्ट से उगेगा, बट मेरी प्रिपरेशन नहीं रुकेगी. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन, एंड इफ देन यू पुट ऑल ऑफ योर एफर्ट इंश्योरिंग कि कुछ भी लेफ्ट आउट नो, तब सारी चीजें, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर. देन एंड ओनली देन सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, नहीं तो फिर लक पे खेलेंगे अपन लोग. मैं नहीं बोल रहा हूँ लक के कारण लोगों को एग्जाम नहीं निकलता, होता है. ठीक है, लोगों का होता है जिनके अनलक के कारण निकल जाता है. बट अगर तुम्हारा लक इतना ही अच्छा है तो एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? कुछ और कर लो. स्टेक पे पैसा लगा लो, ड्रीम इलेवन में टीम बना लो. लक का वहां यूज करो, ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो जाएगी तुम्हारी. अगर लक पे नहीं चलना है और हार्डवर्क पे बिलीव करना है. एंड ऑल्सो लेट मी बर्न दिस कंसेप्शन डाउन टुडे. लक ओनली फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड. ठीक है, लक ओनली फेवर्स दोज हु वर्क. अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, फिर आप बहाना देते रहोगे पेपर में कि मेरा ये नहीं हुआ, वो क्लास ने ये पूछ लिया था, क्लास ने वो पूछ लिया था, इसलिए मैंने नहीं पाया ये वो. क्या ऐसी कोई भी चीज है जो एग्जाम में, जो जिन लोगों ने उन लोगों ने पूछी है और हमने एंटिसिपेट नहीं करा हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा सवाल आ ही नहीं सकता, या ऐसा कोई स्किल सेट टेस्ट कर लिया उन्होंने, जो स्किल सेट इस एग्जाम की प्रिपरेशन को मैं डेवलप करने ही नहीं देती? ऐसा कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट 2020 ऑनवर्ड्स. ऐसा कोई स्किल सेट नहीं है जो टेस्ट हो रहा है, जो आप मॉक्स और अपने प्रिपरेशन के थ्रू डेवलप नहीं कर पाते हो, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से मेहनत करी है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. लगता है बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, है ना? अपने को बहुत एफर्ट डालनी है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड सेज फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. ठीक है, वेरी चीजी लाइन, ऑलमोस्ट ऑलवेज रिपीटेड, बट वेरी ट्रू एंड ऑफन इग्नोर्ड. फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. हम किस प्लानिंग की बात कर रहे हैं? हम अपने मंथ की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने वीक्स की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने डेज की प्लानिंग की बात कर रहे हैं. ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं. मंथ की प्लानिंग की बात होगी कि हाँ ठीक है, अब देखो, व्हाई इज प्लानिंग एट ऑल इम्पोर्टेंट? ठीक है, व्हाई इज प्लानिंग एट ऑल इम्पोर्टेंट? अब तो मुझे एक सवाल का जवाब दो. एवरीबडी नोज हु इज लुइस हैमिल्टन, है ना? एवरीबडी नोज हु इज लुइस हैमिल्टन, F1 ड्राइवर. अब लुइस हैमिल्टन बस कार को अगर रेस पे फुल एक्सेलरेटर पे लेके चलाएगा अपनी F1 कार को, क्या डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा? उसको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना, उसको स्टीयर तो करोगे. ठीक है, कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. It's not all about cars, it's also about drivers. You would have seen F1 drivers saying, or people who love F1, Formula One, saying these sentences. तो किस डायरेक्शन में जाना है अपने को, अगर वही नहीं है अपने पास, तो कितना एफर्ट डालो, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है? कोई रैंडम चीजें सुबह उठ के पढ़ रहे हो तुम, सुबह उठ के सोच रहे हो यार आज क्या पढ़ते हैं, आज CR पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना. तो फिर एनीथिंग, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट आई एम गोइंग टू से, anything that cannot be measured
कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, जो भी अगर तुम मेजर नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं बार बार क्लास में रिपीट करता हूँ, आज भी रिपीट करता हूँ। तो अपने आप को कंट्रोल करनी ही चीजें। तो मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग कैसे करते हैं बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। सेकंड सेंटेंस इज वट एवर यू थिंक इज डिफिकल्ट, देयर इज ऑलरेडी समवन डूइंग इट। होता क्या है ना, अपन लोग खुद को गैसलाइट कर लेते हैं कि इतनी मेहनत कौन ही कर रहा होगा, यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये खुद को फील कराना कि हाँ भाई, आई एम वर्किंग हार्ड। एंड इट इज ऑल्सो easy फॉर अस टू मेक अस फील दैट। व्हाई इज इट सो? क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें वो दिख नहीं रहे लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो है। उनमें से कुछ लोग इस सेशन भी दिखेंगे। ठीक है, तो वो है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आराम से, उन्हें दिखेंगे नहीं। वो कितनी मेहनत करे तो बताएंगे नहीं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और तुम्हें लगेगा कि मैं जितना एफर्ट डाल रही हूँ वो बहुत है। इतना तो कौन ही करता होगा, कौन ही ईयर्स याद करता होगा हिस्टोरिकल इवेंट्स के, किसको ही पता होगा। कौन ही इतना ध्यान रखता होगा कि XYZ प्लान जो गवर्नमेंट ने लाई है उसमें से कितने फंड्स गए हैं किस चीज को लेकर के। कौन ही ये छोटे मोटे टॉपिक्स, लॉ जैसी चीजों को ध्यान रखता होगा, सीटिंग अरेंजमेंट कर रहा होगा। वो तो पहले ये सब कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मेजर टॉपिक्स है वो सब तो होता रहेगा। ठीक है, वो कौन ही करता है इतना, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। कंप्लेसेंसी में नहीं पढ़ सकते अपन। तुम्हें जो भी लग रहा है ना कि यार इतना एफर्ट कौन डालता होगा, लोग डालते हैं, ट्रस्ट में डालते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो डाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो उतने ज्यादा लोग हैं जो एफर्ट डालते हैं, और इजीली 100 लोग तो तुम्हें इंडिया में आराम से मिल जाएंगे जो इतनी एफर्ट डालते हैं। तो तुम्हें खुद में सोचना होगा कि क्या तुम इनफ एफर्ट डाल रहे हो, क्या तुम इनफ हार्डवर्क कर रहे हो। ठीक है, क्या तुम सुबह अगर तुम उठ रहे हो, लेट्स से सुबह 8 बजे, तो आर यू पुटिंग दैट 7 to 8 hours ऑफ हार्ड वर्क? आर यू डूइंग दैट? इफ यू आर नॉट, तब तो फिर ऑल ऑफ अस आर लाइंग टू आवरसेल्व्स, है ना? खुद से ऑनेस्ट नहीं है फिर अपन। अगर इस सवाल का जवाब कि आप इनफ हार्डवर्क कर रहे हो, अगर इसके सवाल के जवाब में आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन है, तो शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो शायद उतनी एफर्ट नहीं डाल। और अगर खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तो एग्जाम नहीं निकल, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब कोई भी चीज जो तुम जो भी एंडेवर लेते हो, इफ यू नॉट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, तब तो फिर पंगा है, तब तो उस चीज से प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो भी हम लोग हार्डवर्क एफर्ट, क्या आप बताऊंगा मैं आगे, ये जो भी हार्डवर्क एफर्ट की बात कर रहे हैं अपन लोग, क्या है ये? क्यों करना है ये? तुम ना किसी भी फील्ड के टॉप 1% को उठाओ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर, डांस वगैरह, जो भी म्यूजिक, कुछ भी हो, तुम टॉप 1% को उठाओ। और तुम एक बार देखो, किसी भी फील्ड के टॉप 1% बनने में हाउ मच एफर्ट डज इट रिक्वायर? इज इट समथिंग दैट हैपेंस इजीली टू एनीवन? अभी IPL चल रहा है, ठीक है, एवरी टीम हैज देयर ओन प्लेइंग 11। हाउ मेनी ऑफ देम will be making it to the India playing 11? Not all of them, right? Although they are putting a lot of effort, but still they're not top 1%, or less than 1% in this case. ठीक है, सो एनीथिंग वर्थ हैविंग नेवर कम्स इजी। कुछ भी जो अच्छा चाहते हो ना तुम, वो इजीली नहीं मिलता। ठीक है, दैट्स द irony of the world of life. As the French saying goes, says Kalavi, so such is life. कोई भी चीज हार्ड वर्क की में ना, अगर कोई भी वर्थ हैविंग चीज वो नहीं मिलने वाली, तो वो अपने को एफर्ट डालना होगा। अब एफर्ट डालना क्या है? ठीक है, एफर्ट डालना क्या है, लेट्स सी। देखो, किसी भी चीज को लर्न करने की स्टेजेस होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा
कि तुम सुबह उठोगे और तुमने कोई चीज पढ़ना शुरू करा और तुम्हें कल वो मास्टर कर लोगे। प्रिपरेशन को टाइम लगती है। ठीक है। इफ यू एंड आई एम गोइंग टू से दिस वेरी क्लियरली, इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग ऑफ, this is today's date is 5th of April 2025. If you're someone who is thinking of preparing for that, and if you're not taking a coaching yet, if you want to take one, do it right away. ठीक है। इतना मत सोचो अभी, अगर डिसाइड कर लिया है तो। क्योंकि किसी भी चीज को लर्न करने के लिए स्टेजेस होती है। ठीक है। ऐसे अचानक से सुबह उठ के कुछ भी पढ़ लोगे और बोलोगे देखो मेरे को ये टॉपिक मैंने पढ़ रखा है, मेरे को आ नहीं रहा, मेरे सवाल जवाब तो होंगे, है ना। स्टेजेस होती हैं, लेट्स से डिवाइड करते हैं 3 to 4 स्टेजेस में। पहला स्टेज, जब तुम फेमिलियराइज होते हो टॉपिक से, जब तुम पहली दफा उसको पढ़ते हो, उसमें तुम्हें अराउंड 50-60 और क्वेश्चंस बनाने होते हैं एटलीस्ट उस टॉपिक के। देन कम्स टू नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पे तुम थोड़ी फ्लुएंसी गेन करते हो उस चीज को लेकर, उस टॉपिक को लेकर। फ्लुएंसी गेन करने के बाद उसमें अगेन तुम अराउंड, तब तक तुम अराउंड 100-120 सवाल बना रखे होते हो। ठीक है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन। उसके बाद एंड में आता है एक स्टेज, तब तक तुम्हारी एक्यूरेसी सही होने लग जाती है। ठीक है। तीसरा स्टेज में एक्यूरेसी तुम्हारी सही होने लग जाती है, या तुम्हारी 70 to 80% एक्यूरेसी हो जाती है, टाइम के साथ होने लग जाती है। तब तक तुम 150 और सवाल बना रखे होते हो इस टॉपिक को लेकर के। 150 में मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। एंड देन कम्स द स्टेज जहां मास्टरी की बात करते हैं, जहां पे तुम हर टॉपिक की अपना तरीका ढूंढ लेते हो उसको सॉल्व करने का। जहां तुम्हारा माइंड ब्रेनस्टॉर्म करता है टॉपिक्स को लेकर के, जहां तुम टॉपिक्स को उठाते हो और तुम अपने वेज निकालने लग जाते हो, अपने ट्रिक्स निकालने लग जाते हो उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तुम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हो उसमें, तुम इतने ज्यादा डूब चुके होते हो उस चीज में कि तुम्हारा माइंड खुद ही तुम्हें बताने लग जाता है कैसे क्या करना है। दिस इज what it means to have mastered a topic. How do we even get started? कोई टॉपिक पकड़ा, एंड ये जो 3 चीजें लिख रखी है यहाँ पे, टॉपिक, टेस्ट, सेशन, टेस्ट, मॉक्स, ये भी एक रीजन से हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। एज आई सेड सेशन के स्टार्ट में, थोड़ा ओवरलोड होगा इंफॉर्मेशन का, तो ये ओवरलोड ही होने वाला है, जो मैं बोलूंगा अभी। कि देखो, किसी भी टॉपिक को मास्टरी करने के लिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो कि पूरा पेपर बना है तुम्हारे 5 सेक्शन से। ठीक है। पूरा पेपर बना है तुम्हारे 5 सेक्शन से, और उन 5 सेक्शन में है ढेर सारे टॉपिक्स। तो पहली बात, वहाँ पेपर है, पेपर है 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में टॉपिक है। तो पेपर अच्छा कैसे जाएगा? जब सेक्शन में कमांड होगी। सेक्शन में कमांड कब होगी? जब टॉपिक्स पे कमांड होगी। ऐसा तो नहीं है मुझे सीआर नहीं आता, मुझे सीआर के टॉपिक्स मैंने पढ़े ही नहीं है, तो मेरे को सीआर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। मुझे सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे एक करके। यू स्टार्ट विद टॉपिक्स। आप टॉपिक टेस्ट देते हो, ये सारे टॉपिक टेस्ट देते हो अलग अलग टॉपिक्स। जब 70-80% सिलेबस खत्म हो जाए, तब आप सेक्शनल टेस्ट पे आते हो, और तब आप सेक्शनल, मॉक्स चलते रहते हैं। मॉक्स हमेशा चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? आपने सुन रखा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मॉक्स प्रिपरेशन खत्म होने के बाद देने की चीज नहीं होती। प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होती, प्रिपरेशन एंड डे को भी खत्म नहीं होगी। एग्जाम अगर 7th को, 6th को प्रिपरेशन खत्म नहीं होगी। ठीक है। तो मॉक्स चलते रहते हैं, मॉक्स के एनालिसिस चलती रहती है। मॉक्स तुम्हें बताता रहता है तुम्हें किन किन चीजों पे वर्क करना है, टॉपिक्स क्या क्या कवर करने, कहाँ से पता चलेंगे तुम्हें? सपने में थोड़ी आएंगे। तुमने एजम्पशन पढ़ लिया, तुम्हें आता है कि नहीं, तुमने टॉपिक टेस्ट सॉल्व कर लिया, मॉक पे बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा तो वापस जाओगे तुम टॉपिक टेस्ट पे। टॉपिक टेस्ट अगर 70-80% खत्म हो गए, तब तुम सेक्शनल टेस्ट के नंबर इंक्रीज करते हो। सेक्शनल टेस्ट इंश्योर करते हैं तुम्हारे सेक्शन में कमांड हो, एंड देन वो मॉक्स में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। पांचों सेक्शन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तुम्हारे, क्यूटी भी छोड़ के नहीं आ सकते कुछ भी। ठीक है। तो सबके लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे टॉपिक टेस्ट है, उसके ऊपर सेक्शनल टेस्ट है, उसके ऊपर मॉक्स है। और इस 3 लेवल पे आप बार बार ऊपर नीचे करोगे। जैसे अगर मॉक, जैसे अगर सेक्शनल टेस्ट है, उसमें अगर तुम्हें रियलाइज हुआ
ये टॉपिक मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, तुम वापस टॉपिक टेस्ट पे जाओगे, फिर सेक्शनल टेस्ट पे आओगे। मॉक दे रहे हो, मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद लीगल उतनी स्ट्रांग है नहीं मेरी, मैं लीगल पे गया, और शायद मुझे तभी तभी रियलाइज हो गया कि लीगल का ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग नहीं है, मैं सीधे टॉपिक टेस्ट पे चला जाऊंगा। अब जब मुझे रियलाइज हो जाए, लोग बोलते हैं मॉक के नंबर कब बढ़ा रहे हैं, अभी तो तुम किसी सिचुएशन में नहीं हो जब तुम मॉक के नंबर बढ़ाओगे। मॉक देने के नंबर फ्रीक्वेंसी वो कब बढ़ानी होती है, वो तब बढ़ाते हैं जब अपनी सेक्शनल टेस्ट में बहुत हाई नंबर आ रहे हैं पर मॉक में नहीं आए, तब मॉक के नंबर बढ़ाए जाते हैं, वो भी एंड में प्रिपरेशन के। उससे पहले इस स्टेज पे कोई नहीं पहुंचता। ठीक है, बहुत बहुत कम लोग उस स्टेज पे पहुंचते हैं, अज्यूमिंग कि कोई नहीं पहुंचता। तुम लोग, आई एम अज्यूमिंग कि तुम में से कोई नहीं पहुंचने वाला है अभी, क्योंकि इट्स वेरी रेयर टू बी। अगर तुमने पहले साल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो, तब तुम ड्रॉप ले रहे हो, तब होता है कि तुम उस स्टेज पे हो। अगर अभी प्रिपरेशन शुरू करिए, वो स्टेज आने में टाइम है। ठीक है, तो मॉक्स के पीछे नहीं भागना है। टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, मॉक्स फ्लैट निकलवाती है, टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट तुम्हें टॉप 3 कॉलेजेस पहुंचाता है, जो भी कॉलेज तुम्हें जाना है। तो टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट हैं मेन किरदार तुम्हारी कहानी के। मॉक्स नहीं है। मॉक्स है ऑफ कोर्स, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने बोल रखा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है कि हर एक सेक्शन में कुछ चीजें होती हैं जो तुम कॉन्स्टेंटली करते थे। ठीक है, अगर तुम्हें वो नहीं पता है, मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं फ्लेम्स की, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। फैकल्टी आएगी, तुम पूछ भी सकते हो, वो बता भी देंगे तुम्हें। ठीक है, हर चीज की कॉन्स्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स कर रहे हो, क्यूटी कर रहे हो, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का डीआई जो है, सिंगल टॉपिक्स के सवाल, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लीगल का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो पुराना वाला, जो पुराने पैटर्न के सवाल जो होते थे वो, इंग्लिश को लेकर ग्रामर, वोकैबलरी, कुछ आरसीज, वो सारी चीजें तुम्हें डेली करनी होती है। और टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो भी है, सेक्शनल टेस्ट में तो टाइम में पेशेंट होकर के डे इन डे आउट तुम्हें वो बेसिक चीजें करनी होती है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बेसिक चीजें तुम्हें करनी होती है। अब वो जो बेसिक चीजें तुम्हें करनी होती है, अगर तुम ड्रॉपर हो ना, और तुमने डिसाइड कर लिया तुम एग्जाम दे रहे हो, तो बस पूरा दिन खाली पड़ा है, इंश्योर करो कि सुबह उठने के बाद और रात के सोने तक जो भी तुम्हारी चीजें हैं, जो भी तुम्हारा टाइम है तुम्हारे पास, वो सारा का सारा टाइम इस एग्जाम को जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ना बेटा, बहुत गिल्ट होता है बाद में अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया और रियलाइज होता है कि शायद मैंने उतनी अच्छे से मेहनत नहीं करी थी। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट दैट गिल्ट। ठीक है, वो गिल्ट नहीं चाहिए अपने को, बहुत बुरा लगता है तब। हाँ, बहुत मेहनत करी, सब कुछ करा, फिर भी नहीं निकला, अलग बात है। ठीक है, लेकिन इतना तो अपन लोग कर सकते हैं ना कि सब पूरी अपनी मेहनत करें, तो उससे पीछे क्यों भागना। ठीक है, तो डेली आप अपनी करंट अफेयर्स तो करोगे ही। ठीक है, अगर हिस्ट्री कवर कर रहे हो, अफेयर्स क्लाउड, न्यूज़पेपर, हिंदू तो तुम्हारा मैंडेटरी है। इंग्लिश में कुछ आरसी सॉल्व करना, सीआर में कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करना, सेम गोज विद क्यूटी। लीगल के साथ भी वही है, कुछ रिवाइज करना, थ्योरी पढ़ना, जो भी है। ठीक है, वो तुम्हारी कॉन्स्टेंट चीज है। अब उन कॉन्स्टेंट को तुम्हें कवर करना ही करना है। ठीक है, उन कॉन्स्टेंट को तुम्हें कवर करना ही करना है। ये दिस इज वन मीम दैट आवर डिजाइन टीम हैज इंक्लूडेड। सेक्शन वाइज प्लान मिलेगा, विल नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल गो टू सेक्शन वाइज प्लान। अभी जो मैंने तुम्हें बोला है, जो मैंने तुम्हें बोला है कि ये चीजें डेली करनी होती हैं, वो क्या है, वो चीजें जो हमें डेली करनी होती है, वो बिगर पिक्चर क्या है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके आते हैं। पहला, वन ऑफ माई, परहैप्स माई फेवरेट सेक्शन, यार इट्स नॉट रियली इजी यार। तो क्यूटी, अगर तुम देखोगे तो क्यूटी में वो ये सारे टॉपिक्स है, ये हमने मंथ वाइज डिवाइड डिवाइड करके दे दिया है तुम्हारे लिए। अगर तुम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो ये मंथ वाइज डिवीजन है, किस मंथ में तुम्हें ये ऑब्वियसली दिस इज द टेम्पलेट। ठीक है, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। ये वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, जो तुम्हें कवर करने होते हैं। अगर तुम देखोगे, अप्रैल मई में हमने परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज रखा है।
क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशनल टॉपिक्स है। ठीक है। वन कैन इवन पुट अगस्त सितंबर वाला रेशियो प्रपोर्शन इन अप्रैल में कैटेगरी, तुम्हारी मर्जी है। बट वो फाउंडेशनल टॉपिक्स है जो तुम्हें आने ही चाहिए इवन बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी अदर टॉपिक इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। फिर अगला है अपना जून और जुलाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगस्त सितंबर मेंसुरेशन, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रपोर्शन। अक्टूबर में वो टॉपिक्स है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। क्लैट ने पूछा नहीं है बट उनके सिलेबस में है, तो ये आ सकता है। तो ये भी पढ़ना है अपने को। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले अक्टूबर में, उनको अक्टूबर में, उनको जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उतनी उतना वेटेज नहीं रहा है अभी तक। ठीक है। अगर तुम नवंबर देखोगे, नवंबर हमने पूरा खाली छोड़ा। नवंबर ऐसा महीना है जिसमें आप कुछ भी नई चीजें पिक नहीं कर सकते। नवंबर के महीने में बस और बस रिवीजन, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको उसको रिवाइज करोगे, मॉक्स का, टेस्ट का, बुक्स मटेरियल जो भी आपने रेफर करा है, क्लास नोट्स, पास या पेपर्स, बस और बस यही चीज। ये तो मंथ वाइज प्लान है। अगर डे वाइज प्लान, अगर क्यूटी की बात करो तो फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रैल का महीना है, आपने शुरू करा परसेंटेजेस, तो अगर परसेंटेजेस पिक करा है, तो परसेंटेजेस के कुछ जो सवाल हैं वो मेरे डेली मैं सॉल्व करूंगा उसको। अगर आप एक ड्रॉपर हो, ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन राइट इट ऑन स्क्रीन। ठीक है, यस आई कैन। सो इफ यू आर somebody who is a dropper, then आपकी जो कांस्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि परसेंटेजेस है, परसेंटेजेस आपको पिक करना है, तो आपकी जो डेली शेड्यूल होगी, आपकी जो डेली शेड्यूल होगी उसमें आप 3 to 4 सेक्शन को टच करोगे रोज, और किसी भी सेक्शन को 3 डेज से ज्यादा गैप नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मंडे को पढ़ा है क्यूटी, ट्यूसडे को नहीं पढ़ा, वेडनेसडे को नहीं पढ़ा, थर्सडे को मैं जरूर से जरूर पढ़ूंगा। ठीक है। 3 दिन गैप अवॉइड करनी है। अगर वर्स्ट के सिनारियो फ्राइडे तो करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। 3 to 4 सेक्शन आप रोज टच करने की कोशिश करोगे, 5 नहीं हो पाता। ठीक है, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, 5 नहीं हो पाता। 3 से 4 में तो, जैसे सेकंड, या 3 से 4 में तो आपका एक क्रिटिकल करंट अफेयर्स तो है, वो तो आपका होगा ही, वो तो आप रोज करोगे ही। उसके बाद लीगल, आरसी, सीआर में से कोई दो पिक कर सकते हो, एंड देन क्यूटी। ठीक है। क्यूटी में परेशानी आती है, मुझे पता है। परेशानी का हल निकालना है बॉस, एग्जाम में रैंक चाहिए, तो उसके बिना नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बिना तो नहीं हो रहा। क्यूटी छोड़ के आओगे तब रैंक तो नहीं आना। ये बात बहुत ध्यान से रखना, ध्यान सुनना। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश, लीगल और सीआर, ये तीनों टॉपिक्स तुम्हारे एग्जाम को क्लियर करवाते हैं। सीए और क्यूटी तुम्हें रैंक दिलाते हैं, क्योंकि यही वो दो सेक्शंस हैं जहां पे तुम सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली लोगों से बेटर कर सकते हो। ठीक है। तो ये वो दो सेक्शन है बेटा जो तुम्हें दिलाएंगी रैंक, जो तुम्हें चाहिए। ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। नवंबर का महीना पूरा का पूरा रिजर्व्ड है तुम्हारे रिवीजन के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। वर्ड पावर मेड इजी, सबसे फंडामेंटल बुक जो है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये तुम अप्रैल में इन चीजों पे ध्यान दोगे। तुम्हारी वोकेबलरी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा। आई रिपीट, योर कॉम्प्रिहेंशन इज एज गुड एज योर वोकेबलरी इज, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है। जून जुलाई इंग्लिश इजी दिया हमने, रेन मार्टिन। अब उसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, अगर इंग्लिश इजी है तो उसमें प्रपोर्शन का जो टॉपिक है, ठीक है, वो काफी अच्छे से बताया है उन लोगों ने। ठीक है। रेन मार्टिन में जो फिगर्स एंड स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है,
वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे बुक्स वाइज भी टॉपिक्स डिवाइडेड होती है, बट पढ़ना तो हमें सब कुछ है। ठीक है। अक्टूबर कॉम्प्रिहेंशन। अब हाँ, अक्टूबर हमने दे दिया है मटेरियल्स को रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, जो फ्लेम्स का मटेरियल होता है। अगर आप फ्लेम्स में नहीं हो तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आपके पास है तो वो पढ़ लो, काफी है। नवंबर रिवीजन के लिए। इसके कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे? इसका कांस्टेंट होगा एटलीस्ट 3 to 4 आरसीज रोज, टाइम्ड मैनर में। ड्रॉपर्स आप लोगों के लिए, या जो ट्वेल्थ में हो, ट्वेल्थ खत्म हुआ है जिनका, ठीक है। 3 to 4 आरसीज टाइम्ड मैनर में, रोज, रोज। ठीक है। ये इंग्लिश को लेकर के हो गया। आप इसको अपने तरीके से बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। बट हाँ, इंग्लिश इज अ फैंटास्टिक सोर्स। एटलीस्ट सम टॉपिक्स which are covered in English is easy, um, are you won't be getting it in that much easy format as the name suggests in Ren Martin. So English is easy is a very helpful book which you can definitely refer to. नवंबर में अगेन सब चीजों का रिवीजन एंड पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स आपकी बाइबल है। बाइबल या जो भी तुम्हें वर्ड देना है, जो भी होली स्क्रिप्चर है आपकी, जो भी, ठीक है, कहने का मतलब वही, ठीक है, कि बाइबल इज सम सॉरी पीवाईक्यू इज समथिंग विच इज योर होली ग्रेल, इज समथिंग विच इज समथिंग दैट यू हैव टू रेफर टू ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। और खासकर जब नवंबर का महीना आएगा, जब लास्ट मंथ आएगा, तो यही करना है अपने को। ठीक है, और कुछ नहीं करना अपने को। आगे बढ़ते हैं। लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट लॉज के हिसाब से हमने बांट रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, बाकी मिसलेनियस लॉज, क्लेम्स का मटेरियल अगस्त सितंबर के लिए, लीगल रीजनिंग, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू हमने यहीं पे डाल दिए, और फिर अक्टूबर में भी लिखा है हमने। लीगल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें पीवाईक्यूज आपको 2008 ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इसके जो पुराने पैटर्न के सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है। और सिर्फ क्लैट का नहीं, एलेट का भी फ्री में मिल जाएगा, गूगल करोगे यू कैन गेट। ठीक है। सारा का सारा सॉल्व होना चाहिए, इसलिए पीवाईक्यू हमने पहले भी डाल दिया। ठीक है, अगस्त सितंबर में ही शुरू कर दिया। एंड नवंबर में अगेन रिवीजन। कुछ नया पिक नहीं करना है, रिवीजन। मिसलेनियस लॉज में जो करंट लीगल है, शानू भैया ने क्लास भी ली थी शायद, डेमो में ली थी, आई एम नॉट श्योर। बट जो करंट लीगल है उसमें जो भी चीजें होती हैं वो सब मिसलेनियस लॉज में फॉल करेगा। अगर आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ आता है तो वो उसमें फिर फॉल कर जाएगा। ठीक है। तो या फिर अगर कोई XYZ लॉ को लेकर के कोई डेवलपमेंट होती है तो वो मिसलेनियस लॉज में फॉल फॉल कर जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा कैच ऑल एरिया है, ये चलता रहेगा एक्चुअली। Newspaper is going to be a primary source for you to figure out what all changes are happening in the legal field. बट हाँ, वो कैच ऑल है। इसमें क्या कांस्टेंट होगा, इसकी क्या कांस्टेंट चीजें होंगी? इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर तुमने टॉर्च पिक करा है, तुम्हारी जो थियोरी रिवीजन है, थियोरी जो तुम पढ़ रहे हो, प्लस उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। ठीक है। फिर उसकी जो पास्ट ईयर पेपर्स है, ठीक है, टॉपिक टेस्ट है। टॉपिक टेस्ट तो हर सेक्शन के लिए था, मैंने क्यूटी में बताना भूल गया था मैं। बट हाँ, टॉपिक टेस्ट तो सारे सेक्शंस के लिए। ठीक है। तो ये चीजें आपकी कांस्टेंट है जो आपको रोज करनी है, सारी रोज नहीं करनी ऑफ कोर्स, बट हाँ रेगुलरली। ठीक है। ये लीगल रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अप्रैल टू में, assumptions challenge weekend conclusion अगेन फंडामेंटल टॉपिक्स है। ठीक है। इन्फ्लुएंस लॉजिज्म, इन्फ्लुएंस 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। पैराडॉक्स, लॉ, कंडीशनल स्टेटमेंट, थीटा मैनेजमेंट। अक्टूबर में एनालिटिकल रीजनिंग डाल रखा है हमने, इसको तुम पहले भी उठा सकते हो डेटा मैनेजमेंट के साथ साथ ही। बट कुछ टॉपिक्स हैं
एनालिटिकल रीजनिंग के जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, सिलोजिज्म भी है बट हमने पहले डाल रखा है क्योंकि सैम्पल पेपर में क्लैट ने पूछ रखा है सिलोजिज्म। ठीक है, और डेटा अरेंजमेंट तो इस बार ही आ रखा था। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एलिट में काफी आते हैं, क्लैट में भी बिल्कुल आ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं है क्लैट ने, बट बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अपने को करनी है। अगेन गोज विदाउट सेइंग, इसका भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही होने वाला है। टॉपिक टेस्ट, थ्योरी। ठीक है, ये हमने एक टेम्पलेट, अगेन आई एम रिपीटिंग, टेम्पलेट टाइप का दे रखा है, यू कैन चेंज इट एज पर योर विश। आगे, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में लिख रखा है हमने एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी कवर करते हो, ठीक है। अगर दृष्टि कवर करते हो तो अफेयर्स क्लाउड, या फिर जीके टुडे। आई प्रेफर दिस, बट ऑल्टरनेटिव है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक चीज कांस्टेंट है। आप डेली, हर दिन का सोर्स सबसे कवर करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, खुद से थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा इंक्विजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आर्टिकल आई थी, न्यूज आर्टिकल आई थी ग्रीनलैंड को लेकर के। ठीक है, 2-3 दिन से आ रखा है पेपर में। तो ग्रीनलैंड को लेकर के तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड है कहाँ, कौन से वाटर बॉडी में है, कौन से वाटर बॉडी से अराउंड है, आइलैंड कंट्री है या फिर लैंडलॉक कंट्री है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगी। आपको थोड़ा सा इंक्लूसिव होना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो अ बिट एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा माइल जिसको हम लोग बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो खुद से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर न्यूज में इथियोपिया आ गया, तो इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, कौन सी वाटर बॉडी है वहां पे, इथियोपिया को लेकर के कुछ नाइल रिवर को लेकर के या जो भी लेक को लेकर के क्या डिस्प्यूट चल रहा है, इथियोपिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, इथियोपिया अगर इसराइल है तो इसराइल का पार्लियामेंट का नाम क्या है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये आपको खुद से करनी पड़ेंगी, विकिपीडिया या फिर किसी भी जाके ढूंढ के कर सकते हो, गूगल करके थोड़ा इंक्विजिटिव होना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आ रही हैं उसके अलावा। अफेयर्स क्लाउड जनरली स्टैटिक पोर्शन कवर कर देता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट सकता है, तो थोड़ा इंक्विजिटिव रहा करो। बाकी अगर ये 3 चीजें कवर कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी वेल प्लेस्ड, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाउ टू रिवाइज? बिफोर एवरी मॉक, मॉक के लिए प्रिपरेशन की जाती है, मॉक ऐसे ही सुबह उठ के दे नहीं दिया जाता। बिफोर एवरी मॉक आप लास्ट 3 वीक्स का नोट्स रिवाइज करोगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो हर वीक आपका कम से कम 4 बार रिवाइज हो चुका होगा एग्जाम तक। और एग्जाम में चीजें बहुत वॉल्यूमिनस हो जाती हैं, अगर कुछ रिवाइज नहीं कर पाए हो तो उसको रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तुम्हारे नोट्स में था पर तुम्हें याद नहीं आया पेपर में क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं करा है। इट्स एज गुड गुड एज कि तुमने वो पढ़ा ही नहीं था कभी। इट्स एज गुड एज दैट। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के बिना, कुछ लोग बोलते हैं, मुझे बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि सर हमें याद ही नहीं रहती चीजें। देखो मुझे तुम्हारा नहीं पता, बाकी लोगों का नहीं पता, मेरे पास तो फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, और जनरली लोगों के पास नहीं होती है। अगर फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है तो रिवीजन ही सोर्स है। बार 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 रिवाइज करो, तो फिर जा करके तुम्हें चीजें याद रहेंगी। ठीक है, और बाकी चीजें जैसे मैप्स हो गए, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस हो गया, इन चीजों का हेल्प लो, चीजों को विजुअलाइज करके याद करने में। अगर विजुअलाइज कर रहे हो तो विजुअल मीडियम से ज्यादा याद रहती है चीजें। ठीक है, जितनी ज्यादा सेंसेस की यूज होंगी उतनी ज्यादा चांसेस होती है वो चीज याद रहने की। ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ जो मैंने बता दिया है, अब
Sure, why not? But there's one more thing which I want to discuss before closing this session. यहाँ पे तो हमने बहुत सारी चीजों की बात कर ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों की बात करी है, बहुत सारी चीजें जो कवर करनी है हर सेक्शन में। करेंगे कैसे? ये जो पूरा टेबल है ना, इसको खुद से बना करके प्रिंट करके पेस्ट कर दो अपने वॉल पे, ताकि तुम्हें याद आता रहे कि तुम्हें कितना कवर करना है, तुमने कितना कवर करा है। और जैसे कवर करते जाओ वैसे टिक करते जाओ और रियलाइज करते रहो कितना स्ट्रांग है तुम्हारा टॉपिक, तुम्हें रिवीजन की कितनी जरूरत है उसको। सब चीज, सारी की सारी चीजें जो भी तुम्हें कवर करनी है, जो भी हो रखा है, सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड टेबल जैसे फॉर्म में होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। चीजें बड़ी लगती हैं, लगता है कि बहुत कुछ है, कैसे होगा। एग्जाम आज नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम आज नहीं हो रहा, एग्जाम में टाइम है, तो उतना भी टाइम नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। एक चीज उठाओ और उसको कवर करो, उसको खत्म करो, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। दो चार चीजें करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक बार में एक चीज उठाओ और करते रहो। जो भी हमने कांस्टेंट डिस्कस किया है अभी तक, इस सब में मॉक एनालिसिस प्लस टॉपिक टेस्ट एनालिसिस और सेक्शनल टेस्ट एनालिसिस प्लस रिवीजन, ये भी पार्ट है उसका। अब बोलोगे सीआर में क्या रिवीजन होता है? सीआर में थियोरी रिवाइज होती है, लीगल में भी थियोरी रिवाइज होती है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो तुम्हारे टेस्ट जो दिए उसको रिवीजन करना होता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं फॉर सम अदर डे, आज नहीं हो पाएगा, आज साइड वो, आज टॉपिक नहीं है वो। बट हाँ, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें जो तुम्हें रेगुलरली करती रहनी है, और जो तुम्हारा ये भी जो जो भी हमने मंथली प्लान बताया है, ये भी चलता रहेगा, ठीक है। ये भी चलता रहेगा। और जो मैंने यहाँ बता रखा था कि कोई भी टॉपिक 3 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ना होता, दैट इज अगेन ट्रू फॉर ऑल दी सेक्शंस, ठीक है। ऑल राइट। सो द स्ट्रैटेजी दैट कम्स आउट इज ऑब्वियसली it is something which is going to be very specific to you, very particular to you, something which is going to be true only for yourself, something that only you have to follow. So make your own strategy. Again, failing to plan is planning to fail, ठीक है। और मेहनत करो, मेहनत करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होगा सक्सेस का, ठीक है। और लक पे चीजें नहीं छोड़नी अपने को, क्योंकि लक अनसर्टेन है, मेहनत सर्टेन है। मेहनत का जो भी स्किल डेवलप कर रहे हो वो स्किल सेट सर्टेन है। जो चीजें सर्टेन है उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो, उस पर वर्क करो। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत हार्ड है। ये एग्जाम ब्लड तो नहीं, पर स्वेट और टीयर्स जरूर मांगता है, ठीक है। स्वेट और टीयर्स जरूर मांगेगा। बहुत बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि चीजें अच्छे से नहीं हो रही हैं, कई बार लगेगा कि पढ़ने के बाद भी मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर रहे, फ्रस्ट्रेशन आएगा। अगर रोने का मन करे तो रो भी लेना, पेरेंट्स से बात करना, फ्रेंड्स अगर कोई है वैसे सपोर्ट मैकेनिज्म है तुम्हारे पास, उनसे बात करना, अपने मेंटोर से बात करना, ठीक है। बट हाँ, डिफिकल्ट जर्नी है, बट डुएबल है। लोगों ने करा है, मैंने भी करा है, बहुत लोग करते हैं, हर साल करते हैं। तो तुम भी कर सकते हो, बट डेडिकेटेड रहना होगा, ठीक है। डेडिकेटेड रहना होगा और बहुत हार्ड वर्क करनी है, ठीक है। चलो, all the very best. One last thing, our Kalam batch 2 is starting. So I think we'll be starting next week or next to next week. I'm not sure. But admissions are underway. We always, what there's one particular thing about Frames is we have a very small batch size. We don't believe in teaching 60, 70, 80 students altogether. 20, 30 is what we usually go ahead with. तो ताकि हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअली हम फोकस कर पाए। So that's happening. And if you want to see how teaching is done at Flames, तो डेमो क्लासेस है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी तुम्हें, उसको जरूर देखना। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर दिस सेशन।
आई होप ये जो सेशन है वो तुम्हें हेल्पफुल रहा होगा. माई पर्पस इज ओनली वन थिंग. अगर ये सेशन देखने के बाद अगर ये सेशन देखने के बाद अगर कोई एक इंसान भी को भी डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, मेरा काम हो गया. अगर कोई एक इंसान ही मोटिवेट हो जाता है और एक इंसान को भी आइडिया लग जाता है कि दिस इज हाउ आई हैव टू गो अहेड विद माय वर्क इज डन देन. ठीक है. ऑल राइट. आई टेक योर लीव नाउ. All the very best again, and keep preparing, keep smiling. This artist journey should not take away your smile, take away whatever you are, uh, your own individuality. ठीक है ना? Work hard, party harder, break लेते रहना, and I'll see you till next session. Bye bye. Take care.